lovely students, welcome back to my channel Everyday English. As you can see on the top, I just wrote it's fixed here, I'm not gonna remove. Please subscribe Everyday English, which is my channel, like my videos, share them and hit the notification button. Must keep it on, and you just watch my videos, save them. You can make a playlist, or I will just put all of those in one simple playlist, and it will be very easy for you to watch them. Okay, so आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं when you take responsibilities and when you don't take responsibilities. How to talk about this. When you take your responsibilities, the simple expression is every day. I'm just gonna try to zoom it. Okay. So when you take responsibilities, generally you listen, I am taking care of something. I am, or you can say I am, or you can say you are taking care of something, right? Or you can say I'm working on it, or you are working on it, means you are taking the responsibility. Okay. So how we can talk about this to take a responsibility expression in various ways, in multiple ways. So let's start reading and understanding these sentences. Okay. So the first one is I am on top of it. It does not mean you are sitting on something. No. It means you are working on something. You took the responsibility. You are responsible. You took the responsibility. You are working on it. Okay. Next one, I am dealing with it. यहाँ पे वर्ड आपने डाल दिया dealing. ये है on top of it. Means आपके हाथ में है, आपका होल्ड है इस पे, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप हैंडल कर लोगे. ये आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस शो करता है. When you say I'm on top of it, और यहाँ बॉटम में एक सेंटेंस है, if you are easy to see, yes. Okay, so I am on it. ये on it, which is a very like only 4 words. I am on it. इसका 100% मीन है you took the responsibility and you will complete it. Responsibility, you took the responsibility and complete it. Okay, let me go back up here. So I am dealing with it, or you can say I am dealing with an issue. There is a problem. Anywhere, any situation, you can use this sentence. It's very easy, very convenient. So I am dealing with an issue. Okay. And like, for example, if you're telling somebody, so you can say I am dealing with it. What is that thing? It's an issue. Okay. And I'm solving it. I am trying my best to solving it. The issue. Okay. Let's move on to the next one. It's in progress. जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ली है वो इन प्रोग्रेस है. ठीक है. ये एक वेरी सिंपल एक्सप्रेशन है. आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक, सॉरी बाय मिस्टेक आई रेज इट. इट्स इन प्रोग्रेस. ओके. नेक्स्ट वन, आई एम वर्किंग ऑन इट. आई एम वर्किंग ऑन इट. वेरी वेरी सिंपल एक्सप्रेशन. आपने एवरीडे रूटीन में सुना होगा ये. Very very easy, very simple. I am working on it actively, or you can say I am actively, let me write here, actively working on it. Next one, I have got it covered. I have got it covered का मतलब है in safe hands. जो भी है responsibility वो अभी सेफ हैंड में है. ठीक है. सो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला. जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है आप उसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन. आई एम एड्रेसिंग इट. आई थिंक ई मिसिंग है यहाँ पे, सॉरी. आई एम एड्रेसिंग इट. सो ये बिल्कुल सिंपल से सेंटेंसेस हैं
और ये यहाँ पे एक या दो वर्ड्स यहाँ पे चेंज होंगे, उसके बाद ये बिल्कुल सिंपल है, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं और इजीली आप इनको यूज कर सकते हैं। सो प्लीज गो फॉर इट। आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट, ये भी सिंपल है, एवरीडे का सेंटेंस है। आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट। अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी, या वर्क प्लेस पे भी यूज कर सकते हैं अपना, वर्क प्लेस पे, वर्क प्लेस, आई जस्ट रोट हियर, ये आपका जॉब इजी हो जाएगा। ये आप जॉब पे अपने वर्क प्लेस पे इसको यूज कर सकते हैं, इस सेंटेंस को, आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट। अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई कोलीग है आपका, कोई मेस कर रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने मैनेजर को, अपने कोलीग्स को, किसी के साथ भी किसी भी कॉन्वर्सेशन है, आप उसमें बोल सकते हैं कि ओ या दिस इज द प्रॉब्लम, ओके लेट मी हैंडल इट। ओह दिस इज अनदर ब्यूटीफुल सेंटेंस कम अप, लेट मी हैंडल इट, ओके। एंड सेम as you see here, I am handling the matter. I am handling the matter. Whatever issue is going on, I am handling with it. I am dealing with it. यहाँ पे ये हमने यहाँ पे जो बात की थी, how to use dealing. Okay. Next, I am resolving a problem. Same expression, लेकिन मीनिंग वही आ रहा है। आप नोट कर रहे हैं कि मीनिंग वही आ रहा है और साथ में सेंटेंसेस की जो वैरायटी है, उनकी जो डिटेल है, जो एक्सप्रेशंस का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो रहा है। एक्सप्रेशंस का जो फॉर्मेट है, द ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंज हो गई है। न्यू वर्ड्स डाल दिए हमने। स्टार्टिंग में आई एम सिंपल, यहाँ पे बाकी सेंटेंस में कुछ चेंजिंग करके 1 और 2 वर्ड्स आप बीच में ऐड करके आपका बेस्ट न्यू सेंटेंस क्रिएट हो रहा है, राइट। वेरी सिंपल, वेरी इजी लैंग्वेज, प्लीज यूज देम। सो आई एम रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम, हम लोग यहाँ थे। नेक्स्ट वन, आई एम टेकिंग चार्ज ऑफ इट। ये चार्ज का मतलब आप मनी चार्ज नहीं कर रहे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। आई एम टेकिंग चार्ज ऑफ इट और आई एम टेकिंग चार्ज ऑफ अ टास्क, ओके। इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एक्सप्रेशन फॉर जॉब। वर्क प्लेस पे आप जॉब पे अपनी जॉब के आप किसी के साथ भी ऐसा बात कर सकते हैं, दैट इज टोटली ओके। आई एम सॉर्टिंग इट आउट, यहाँ पे आ गया आई एम रिजॉल्विंग। रिजॉल्विंग का भी मतलब है सॉर्ट, लाइक उसका सोल्यूशन निकालना, और सॉर्टिंग और रिजॉल्विंग ये दोनों सिमिलर हैं। द लास्ट वन आई ऑलरेडी टॉक अबाउट इट, आई एम ऑन इट। आई एम ऑन इट, इसका मतलब है कि हम लोग वर्क कर रहे हैं, ओके। एक तो ये हो गया, ये तो हो गया एक पॉजिटिव कंप्लीट एक्सप्रेशन। आई एम गोइंग टू राइट हियर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, यहां पे लिखते हैं, ये आप क्लियर नजर, ये है एक पॉजिटिव थिंग। सॉरी मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी होगी, बट बेयर विद मी, ओके। सो ये है ऑरेंज में, जहां पे जितने भी सेंटेंसेस हैं ये सारे पॉजिटिव एक्सप्रेशंस हैं। आप घर में बोल सकते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ, ये सिंपल चीजें हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं है, वेरी वेरी इजी। आप अपने वर्क प्लेस पे कोई भी एक सेंटेंस एटलीस्ट आप 3 या 4 तो याद कर ही सकते हैं, इट्स वेरी इजी। हाँ, सिमिलर याद करने, ओ या ओके फाइन, आई एम टेकिंग चार्ज ऑफ इट, आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट, आई एम ऑन इट, आई एम ऑन टॉप ऑफ इट, आई एम डीलिंग विद इट, इट्स इन प्रोग्रेस, I'm working on it. Or you can say I'm taking care of it, I'm handling the matter, okay. Or you can say let me handle it, or I'm confident to do that, right. So यहाँ पे आप इस तरह से इसको explain कर सकते हैं। If you have any question, I'm just gonna write here, any question, सॉरी मेरी जो राइटिंग है वो थोड़ी सी मैसअप है, ओके। एनी क्वेश्चन प्लीज राइट इट कमेंट सेक्शन, ओके। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज शूट मी अ मैसेज देयर, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू हाउ टू रिजॉल्व दैट इशू, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द अदर साइड नाउ। एक तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जब आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं
और अगर आप उसको हैंडल कर सकते हैं, किसी टास्क को आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सेंटेंसेस है जिससे आप अपने नॉट ओनली द वर्क द मैनेजर, कोई भी बंदा आपका जो सेकंड पर्सन है उसको आप इस वन सिंगल एक्सप्रेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ओके नो प्रॉब्लम, आई एम टेकिंग केयर ऑफ समथिंग, और आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट, आई एम वर्किंग ऑन इट, और आई कैन डील विद इट, राइट। इनमें से कोई सा भी सेंटेंस आप 2, 3, 4 आप याद कर लें, they will definitely help you. Okay, let's move on to the next slide now. I'm trying to make it more clear. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कीप इट हैंडी, सेव इन योर फोन। प्लीज इनको ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर रिव्यू कीजिए, रिपीट कीजिए, मेमोराइज कीजिए। ये बहुत हेल्पफुल है, ये आपको बहुत अच्छा इमेज बनाएंगे एवरीवेयर यू आर और एनीवेयर यू आर। ओके, so the next we are going to talk about when you don't care of something. When you don't care of something. Let me just adjust my board here. There we go. Okay. So here I'm going to talk about when you are not taking the responsibility. When you are not taking the responsibility or you are avoiding it. You don't care about it. ये सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। सभी के सभी एडवांस सेंटेंसेस हैं, मैंने इन पे बहुत मेहनत की है, बड़े अच्छे से मैंने इनको फाइंड आउट किया है। आई जस्ट बिल्ड अप फॉर यू। तो आप यहाँ पे कॉमन सेंस के साथ आप इनको बिल्ड कर सकते हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं सेंटेंसेस। इनको आप किसी भी तरीके से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन बना के आप बोल सकते हैं, दिस टोटली ओके, क्योंकि सबका मीनिंग सेम है, विच इज you don't care of something. How to express that expression? Okay, so ये जो expression है, तो first one आएगा I am neglecting. Neglecting सभी को पता है, neglecting का मतलब क्या है। neg का मतलब आएगा negative, negative, ठीक है, इसका मतलब आएगा negative. Sorry, let me just write it again. ओके, इसका मतलब है कि ये नेगेटिव। यहाँ पे हमने ऑरेंज में सारे जो सेंटेंसेस देखे हैं ये पॉजिटिव एक्सप्रेशंस हैं। ब्लूज में, ब्लू का वैसे भी मतलब होता है सैड, बट इट्स नॉट इन दैट सेंस कि लाइक सैड दैट इज नेगेटिव सेंस, बट इट्स अ नेगेटिव फीलिंग, सो आई जस्ट पुट इन अ ब्लू। मे बी यू लाइक माई कलर कॉम्बिनेशन, लेट मी नो, टाइप इन कॉमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो विच कलर कॉम्बिनेशन you like the most. Okay, so sorry, I'm kidding. So let's go back. I am neglecting it, or I am avoiding it. I am avoiding it, like I don't care about it. Whatever happened with the task, whatever happened with any kind of issue which just rise up, so you don't care. Simple meaning, you don't care, you're not taking off responsibility. Next one, I am not. सेम सेंटेंस है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ नॉट लगा दिया बीच में। आई एम नॉट डीलिंग विद इट, आई एम नॉट डीलिंग विद इट। आई एम ओवरलुकिंग। ओवरलुकिंग का मतलब, ओवरलुकिंग एक न्यू वर्ड है। ओवरलुकिंग का मतलब है कि यू आर फेल्ड टू अंडरस्टैंड, राइट। आई एम ओवरलुकिंग इट, इसका मतलब है आई एम मिसिंग समथिंग, I am not taking care of something. I am failed to observe, or other thing you can say I am failed to notice. Fail to notice. Okay, इसका मतलब क्या है? I am overlooking it. Failed to notice, overlooking, failed to notice का मतलब है कि you don't care, you didn't even see something wrong happened, you don't even look at that, because if you see, okay, some people are doing some things intentionally, I mean कि उनको पता होता है कि ये ऐसा कुछ बुरा हो रहा है, but they don't want to jump in that situation, वो उस चीज की परवाह नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई एम ओवरलुकिंग इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर
कोई खाना बना रहा है और खाना बर्न हो रहा है एंड नोबडी केयर्स, कोई भी बंदा, मैं आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोना मेंशन एनीबॉडी, लेकिन जनरली हम लोग बात करते हैं इस पे कि अगर कोई फूड बर्न हो रहा है और कोई भी बंदा वहां पे जॉब पे है या कहीं पे भी है और वो नोटिस कर रहा है, वो देख रहा है कि ये बर्न हो रहा है एंड इट इज नॉट गोइंग टू पे अटेंशन देयर, सो हम लोग वहां बोलेंगे यू आर और ही इज ओवरलुकिंग इट। उनको पता है कि समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग बट दे आर नॉट गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों का काम नहीं होता भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बच्चों का काम नहीं है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल होने के लिए आपको बहुत सी चीजों पे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। आई एम फेलिंग टू फॉलो अप ऑन इट। फॉलो अप का मतलब होता है कि रिस्पॉन्स, कि एक चीज आपने कोई ईमेल सेंड की है और आप उसके बाद उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे मैनेजर को या एनी अदर पर्सन, कोई भी आपका एम्प्लॉयर है, कोई कोलीग है, अगर वो इम्पोर्टेंट है, और इफ इट इज अ स्टैट का मतलब होता है अर्जेंट, इफ इट इज अ स्टैट ईमेल और आप उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो डेफिनेटली यू विल बी इन ट्रबल। ओके, लेट मी move my camera little bit down. All right, perfect. Okay, so same as I am disregarding it, ठीक है। I am disregarding, very nice sentence, आप इसको प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। I am letting it slip, I am letting it slip, सेम मीनिंग है। स्लिप का मतलब है कि मिस करना, सेम मीनिंग है इसका भी कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, मुझे अवॉइड करना है, मुझे नहीं करना ये काम। आई कैन नॉट हैंडल इट, राइट, यू कैन से ऑल्सो आई कैन नॉट हैंडल इट। और एक चीज, एक एक्सप्रेशन और है जो कि बहुत कॉमन होता है, वो है अनअटेंडेड। अनअटेंडेड, ठीक है। आई एम लीविंग इट अनअटेंडेड। यहाँ पे आप वो फूड की एग्जांपल लगा सकते हैं कि आपने कोई देखा है कोई फूड बर्न हो रहा है, स्टोव है, स्टोव के ऊपर कोई पॉट है, पॉट में व्हाटएवर इज कुकिंग, आप देख रहे हैं कि वो बर्न हो रहा है और आप वहां से खिसक गए। यू मीन कि आप इंटेंशनली, जैसा मैंने आगे बोला कि कुछ लोग इंटेंशनली काम करते हैं, तो आप इंटेंशनली कर रहे हो। आई एम लीविंग इट unattended to put somebody in trouble। तो ये यहाँ पे जहां भी कहीं पे जेलसी और अगर लोगों का माइंड सेट ऐसा बना है कि भाई किसी से बदला लेना है, किसी को तो किसी को पेन देना है, तो वो ऐसी हरकतें करते हैं। तो वहां पे आप कह सकते हैं ही, आई डोंट वांट टू चेंज द सेंटेंस बट यू कैन से he is leaving or he left it unattended। in future videos I'm going to talk about the sentences। so for मैंने अभी sentences जो tenses हैं आपके, जो 12 tenses हैं ग्रामर में, मैं उन पे बात नहीं करने वाली अभी, राइट। अगर आप लोगों को कोई कंसर्न है, आप लोग कोई इश्यू है किसी भी टेंस के साथ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बट सो फार ये इतनी बोरिंग और कॉमन वीडियो हैं, मैं उनको प्रेजेंट करूंगी डिफरेंट एंड इजीएस्ट वे से, जहां पे आप लोग लर्न करें। आप लोगों ने वॉच की वीडियो इंस्टेंटली आपने लर्न कर लिया, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। तो ऐसी वीडियोज बनानी चाहिए जिसको आप देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट, छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा स्क्रीनशॉट होएगा, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो आप इजीली, आपके पास कितनी वैरायटी आ गई भाई बोलने के लिए। स्टूडेंट्स फोकस हियर, कितनी वैरायटी मैं दे रही हूं आपको बोलने के लिए, बात करने के लिए। आप किसी भी एक्सप्रेशन को, अभी मैं बहुत सारी मजे मजे की चीजें, बहुत मजे मजे की एक्सप्रेशंस यहाँ पे बोर्ड पे लाने वाली हूँ एंड वीडियो होगी उसके अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को बहुत हेल्प होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल कि आप कैसे कोई भी चीज, कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। तो जितनी भी जो बोरिंग वीडियो हैं अब तक, टेंसेस की देख लें, ये है वो है, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स इन ग्रामर, आई विल टॉक अबाउट दैट, बट लेकिन इन डिफरेंट वे से, कि जैसे आपने वीडियो वॉच की उसी वक्त इंस्टेंटली आपको याद हो गया, राइट। इमीडिएटली आप उस पर वर्क करो। ये नहीं कि अभी आप वो
एक वीडियो वॉच की है, उसको फिर रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट आप करते जा रहे हो, वो समझ में नहीं आता। और जैसे सब लोगों का समझाने का तरीका डिफरेंट होता है, तो इसलिए बहुत से लोगों को समझाना आता भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। चलो बैक टू आवर लेक्चर। सो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आई एम पुटिंग इट ऑफ। ये भी एक वेरी सिंपल एक्सप्रेशन है, वेरी गुड वन टू एक्सप्लेन यू आर delaying something, you are not working on your responsibilities, you're not taking your responsibility. If you took the responsibility, you're putting it off, you're putting it off or postponing, putting it off, ये पूरा एक जो है putting it off का सिमिलर है postponing, ये सिमिलर है, सेम है, ठीक है। ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। I am not addressing or managing it. I am not addressing or managing it. Okay. Let's move on to the second last, which is also very, very nice, very simple and advanced word I put here. It's like a high level word, account. I do not care for the loss. I do not account for the loss. ये सेम एक्सप्रेशन है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं। मीनिंग क्या है, यहां पे आ जाए ऊपर, यू डोंट केयर ऑफ समथिंग। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये सारे नेगेटिव जा रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो लॉस, ये भी नेगेटिव है। ओके, दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव एक्सप्रेशन। आई डू नॉट केयर ऑफ फॉर द लॉस, और आई डू नॉट, और यू कैन से आई डू नॉट टेक अकाउंट ऑफ फॉर द लॉस। थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बट बेसिकली आप लोग अभी इसमें ग्रामर में मैं नहीं जा रही, टेंसेस में मैं नहीं पढ़ने वाली, सिंपल सेंटेंसेस लिख रही हूँ जो कि आप लोग इजीली आप लोग स्टार्ट करें यूज करना। भाई आप लोग क्यों बोर हो रहे हैं, ठीक है, ये इंग्लिश है, इसमें बहुत वैरायटी है, हम लोगों को कोई सही से गाइड नहीं करता, तो वाई नॉट कि हम लोग अपनी हेल्प करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए, डोंट वरी। तो यहाँ पे आएगा आई डू नॉट केयर फॉर द लॉस, और यू कैन से आई डू नॉट अकाउंट फॉर द लॉस, लाइक आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। आई एम, अकाउंट का मतलब आता है आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, वट एवर इज हैपनिंग, लाइक इफ यू पुटिंग द फूड एंड द फूड इज बर्निंग, आई डोंट केयर। ओके, लेट मी राइट, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इसको यहाँ पे नोट कर देती हूँ। Not responsible. I do not account for the loss. I am not responsible for something you lose. I don't care. Last one. I am not responsible for the loss. ये same thing. यहाँ पे वो expression आ गया, ये आ गया, सिंपल था, मैंने इसे लिख दिया। Okay, again जैसे मैंने पहले बोला है कि प्लीज कोशिश करें कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन होए कि जो आपका सिंपल, बहुत सिंपल सेंटेंस जो है उनको आप रहने दें बिगिनर्स के लिए। एडवांस चीजों पे आ जाओ भाई, यहाँ पे आ जाओ, आई एम ऑन टॉप ऑफ इट, इट्स इन प्रोग्रेस, और आप कह सकते हैं यहाँ पे आई एम ऑन इट, वेरी शॉर्ट, वेरी फास्ट, बहुत फास्ट बोला जाए, आई एम ऑन इट, ओके, आई एम सॉर्टिंग इट आउट, ओके, आई एम टेकिंग चार्ज ऑफ इट, दैट्स ऑल्सो ओके। ओके, ये सारी चीजें आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो लिस्ट है, आप कोई भी चीजें आप यहाँ पे कोई भी सेंटेंस जो भी आप जहाँ पे भी आप फील आप कन्वीनियंट है, जो इजी है आपके लिए, उनको आप जो है अपनी डेली लैंग्वेज में लेके आ सकते हैं। जो ज्यादा सिंपल है, एज ए सेड अर्लियर, उनको आप रहने दे बिगिनर्स के लिए। यार कोई नई चीज लो ना, यहाँ से कोई नई सेंटेंसेस लो, उनको आप बोलना शुरू करो, वो आपकी जो है ना, आपका कॉन्फिडेंस शो करेंगे आपके लैंग्वेज के ऊपर। ओके, आई गेस सो। हाँ जी, बहुत लंबी वीडियो हो गई, मैं यहाँ पे इसको सम अप करूंगी। आई एम गोना जस्ट स्टॉप इट। ऑलराइट, सो अगेन सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स ऑलवेज हियर। सो यहाँ से वीडियो मत देखना शुरू करना, ऊपर से करना कि आज स्टार्टिंग में क्या सॉरी आई एम किडिंग। यहाँ से शुरू करना, देखना है कि सब्सक्राइब एवरीडे इंग्लिश, like my videos, share them to all of those students who are still stuck or who are still struggling with English. उसके बाद फिर अब नोटिफिकेशन बटन जो भाई उसको ऑन कर लें, बड़ा जरूरी है, ठीक है। जैसे ही मैंने अपलोड करी
इंस्टेंटली आपको कड़क करके मैसेज आ जाएगा, ओके या न्यू वीडियो आ गई, न्यू लेक्चर मिल गया, वेरी नाइस। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू अपलोड वीडियोज एवरी डे। लेकिन अगर कोई मिस भी हो गया, नो प्रॉब्लम, अगर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं एनी टाइम। तो हम लोग यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, आई एम जस्ट गोना रिपीट हियर, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। डोंट बी शाय, ठीक है, डोंट बी शाय। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही, मुझे यहाँ कमेंट में लिखिए, ठीक है। और दैट्स इट, ओके, देन सी यू, बाय बाय।